Okay, dear friends. So we are going to discuss about parenting in present times. Every parent wants her or his child to be raised in a best way. Whatever dreams we could not achieve, जो सपने हम अपने पूरे नहीं कर सके, we want कि हमारा बच्चा उन सपनों को पूरा करे. Whatever we tried becoming but we could not become, we want that my child should become that. But trust me, my dear friends, parenting is not an easy task. It's completely a science. And that's why I say that parenting has certain principles. Specifically, if I talk about parenting has certain positive parenting has certain principles. And in next few minutes, I'm going to talk about uh, what are those principles and just a moment, somebody is unmuted. So need to, okay. So my first question here that comes is to all the parents. Let me be very clear. This discussion is for parents, not for kids. So you can allow your kids to play. आप अपने बच्चों को खेलने के लिए छोड़ सकते हैं. बहुत महीनों से आपके बच्चे स्क्रीन के सामने बैठ करके क्लासेस ले रहे हैं. एंड टुडे इज द टर्न ऑफ पेरेंट्स. तो आज पेरेंट्स यहाँ पर बैठ के देखेंगे कि उन how actually they feel when they are sitting in front of screen and listen to somebody. So my question is, do you know parenting? क्या हमें पेरेंटिंग आती है? अब जितने पेरेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, मैं ये कहूँगा कि जब बच्चा हमारी जिंदगी में, हमारी फैमिली में आता है, क्या उससे पहले हमने पेरेंटिंग को समझा, हमने पेरेंटिंग को पढ़ा, हमने पेरेंटिंग के प्रिंसिपल्स के बारे में बात की? और आंसर आएगा नहीं. मैं भी शायद उनमें से एक हूँ. हमारे यहाँ पर हम खुद बच्चों को साथ डील करते करते पेरेंटिंग सीख जाते हैं. अब वो सही भी हो सकती है और वो गलत भी हो सकती है. यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर आप बच्चे को पैदा करने से पहले यू हैव टू गो थ्रू अ काउंसलिंग, साइकोलॉजी रिलेटेड काउंसलिंग. You have to take a course on parenting, and then only you are allowed to give a birth to child. Reason is very clear, my dear friends. Okay, that's right to give a birth to your child, but if you are not good at bringing the child, you are spoiling somebody's life. और मैं कहता हूं कि दुनिया का कोई पेरेंट डेफिनेटली ये नहीं चाहता कि मेरे बेटे की और बेटी की अपब्रिंगिंग खराब हो. फिर भी कहीं ना कहीं उसमें इश्यूज रहते हैं. I tell you one thing, I have done parenting seminar not only India but outside this country as well. And many parents come to me with their child. Shahina ma'am, आप म्यूट कर लीजिए. So many parents come to me whenever there are certain challenges कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, मेरे बच्चे की कुछ bad habits हैं, या my child is aggressive, so what should I do? और आपको सुन करके ताजुब होगा कि मेजॉरिटी ऑफ सिचुएशन में, जब मैं सिचुएशन को इवैल्यूएट करता हूँ, पेरेंट्स कम टू मी विद देयर चाइल्ड एंड दे आस्क मी टू काउंसल देयर चाइल्ड, एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द होल सिनेरियो, in 80 to 90% of these situations, I conclude that child does not need counseling. Actually, parents need counseling. It's a very hard fact, my dear friends, because we have never learned how parenting should be done, how you should handle the child. When child demands something, how you should handle the child. When child is getting adamant, जब बच्चा जिद्दी होता है, जिद करता है, तो हमें ये पता नहीं, किसी ने सिखाया नहीं कि how to handle the child. When child gets aggressive, we do not know how to handle the child. When child is not able to focus on something, when child is not able to connect with friends, we do not know how we have to handle the child. Therefore, I request you to take it as a science and management, because सबसे मुश्किल काम है, बच्चों को रेज करना आसान नहीं है. You spend your hard-earned money, you spend your lifetime, you sacrifice so many comforts for the betterment of the child. But do you think that every child fulfills the expectation of parents? No. So you need to understand that
we have to accept the fact that if child is not listening to me, child is having some addictions, you have to understand where I'm going wrong and what are the basic problems and issue over here. Um, Let me tell you, child's programming starts immediately starts happening when the child is born. जिस दिन से बच्चा पैदा होता है उसी दिन से उसके दिमाग की प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है. So what if child is on 1 month old? So what if child is not able to explain anything, can't speak, can't express, but still the child psychology principle says that maximum programming of a child happens till the 8 years of age. 8 साल की उम्र तक चाइल्ड की हैबिट्स, उसके बिहेवियर पैटर्न्स, उसके कॉन्फिडेंस लेवल्स, उसकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग क्रिएट हो जाती है. अगर बच्चे का गुस्सा तेज है, बच्चा इनडिसिप्लिन है, बच्चा आपकी बात नहीं सुनता है, बच्चा एग्रेसिव है, व्हाटएवर प्रॉब्लम द चाइल्ड हैज, वो प्रोग्रामिंग उसकी पहले 8 साल में हो जाती है. So हमें ये समझना पड़ेगा. Why I'm saying so? When in the presence of the child, two adults are talking, they do not think that the child is listening to you, and whatever you are discussing and talking, that is affecting child's mind. हमें ऐसा लगता है 5-6 साल का बच्चा इसको क्या समझ में आएगा, हमें लगता है 2 साल का बच्चा इसको क्या समझ में आएगा, लेकिन ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है. बच्चा जिस दिन से पैदा होता है उस दिन से वो ग्रास्प करना शुरू करता है कि उसकी फैमिली में क्या चल रहा है, कोई हॉट टॉक हो रहा है, बाकी के लोग कितने डिसिप्लिन है, वो उस एनवायरमेंट से इस सिचुएशन को ग्रैब करता है. और ये भी मान लीजिए a child spends in the family, the second highest time child spends in the school. तो दोनों जगह का एनवायरमेंट, टीचर्स का बिहेवियर, पेरेंट्स का बिहेवियर, सराउंडिंग्स में वो क्या देख रहा है, वो सारी की सारी चीजें वो बच्चे के दिमाग में क्रिएट होती है. तो हमें ये पहला प्रिंसिपल जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा, दैट मेनी पेरेंट्स कम टू मी, सर मेरा बच्चा बहुत शैतान है, पता नहीं ये कैसे इतना शैतान बना. तो मैं आपको अपनी अर्ली चाइल्डहुड में ले जाना चाहता हूँ. और जैसा मैंने कहा, मेजोरिटी ऑफ सिचुएशन में द चाइल्ड इज योर मिरर इमेज. अगर बच्चा आपका है तो वो आप ही की मिरर इमेज है. आप जरा सोच के देखिए, आपने बचपन में कि आप जब 5, 6, 7, 8 साल के थे, हाउ यू यूज्ड टू बिहेव, हाउ नॉटी यू वर. बट डेफिनेटली द वर्ल्ड इज ऑल्सो चेंजिंग. हमारे टाइम पे टेक्नोलॉजी उतना नहीं था, ऑप्शंस हमारे पास उतने नहीं थे, तो हम उतने एक्टिव नहीं थे. बट आजकल बच्चे के पास मोबाइल है, कंप्यूटर है, टीवी है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इंटरनेट है, तो वो हमसे कंपैरेटिवली ज्यादा एक्टिव और कम उम्र में हमसे ज्यादा क्लेवर है. तो हम गलतियां कहाँ पर करते हैं? बहुत सारे पेरेंट्स मुझे कहते हैं, सर माई चाइल्ड इज स्क्रीन एडिक्टिव, मोबाइल वो छोड़ता नहीं है. तो कभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा कि कभी आप अपने घर में सीसीटीवी लगा के देखिए और 24 आवर्स की रिकॉर्डिंग करिए और देखिए कि घर के एडल्ट्स कितनी देर मोबाइल यूज करते हैं. तो आएंगे कि घर के एडल्ट्स, चाहे मॉम हो, चाहे डैड हो, चाहे दूसरे लोग हो, काफी देर तक मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं. तो बच्चे के दिमाग में वही चीज प्रोग्रामिंग हो रही है. बिकॉज व्हेन यू आर यूजिंग मोबाइल, आपको लग रहा है आई एम डूइंग करेक्ट, बट व्हेन योर चाइल्ड रिप्लिकेटेड दैट बिहेवियर, you think there is some problem. तो you know the change begins with me. मुझे जिस तरह के बिहेवियर की अपने चाइल्ड से एक्सपेक्टेशन है, मुझे देखना पड़ेगा कि क्या वो बिहेवियर, चाहे गुस्से का बिहेवियर हो, चाहे लेजीनेस का बिहेवियर हो, चाहे पेट का बिहेवियर हो, चाहे इनडिसिप्लिन का बिहेवियर हो, हर चीज लेजीनेस का बिहेवियर हो, चाहे पेट का बिहेवियर हो, चाहे इनडिसिप्लिन का बिहेवियर हो. So what is supposed to be done? I give you my own example. I have 2 sons. Okay. As a child, I could see in my family that everybody has a reading habit. My mom is not very educated, but I had seen her reading a newspaper or reading many spiritual or social books. My father is, of course, expert author or read so many books. So we had seen that in while we were child. And when I was studying in 7th standard, I started writing articles and I started contributing articles for the small articles, writers for the newspapers.
I'm not saying I was talented. I would say this had come from the environment to me. Okay. So what happened when I got married, my wife also had a habit of reading why before sleeping or reading something in the daytime. So when my elder son was 3 or 4 year old, he used to copy us. You know, when he used to go to grandfather and grandmother's room, he will find that they are reading a book. When he comes to my room, he finds that mom or maybe dad, both of them are reading, and the reason is I have a huge library at my place with 2,000 plus books. So what happened? He used to imitate. He used to copy us. उसको पढ़ना नहीं आता था, but वो कैसे भी एक book open करके he used to imitate and copy us as if he's also reading, because it comes from the environment. And let me give you an example. When I used to go out, my both sons used to tell me, Dad, bring a good book for us. And मैं बचपन में और आज तक सबसे ज्यादा अगर उनको मैंने कोई गिफ्ट दिया होगा तो बुक्स का गिफ्ट दिया होगा. एंड दे आर क्रेजी. आज से 8-9 साल पहले की बात है, हम दुबई में थे, दुबई मॉल में कुछ शॉपिंग कर रहे थे, एंड आई हैड टू बाय एन एलईडी टीवी. सो मी एंड माय वाइफ वर बिजी देयर. सो माय एल्डर सन कम्स टू मी, बोथ ऑफ देम वर विद us, and he said ki papa, 2 hours ke baad, we took 2 hours to purchase the TV, and after 2 hours I approached them, so they were still sitting in the bookstore with one book each kept in their hand. बोले पापा यहाँ बहुत exciting books है, तो उन्होंने एक book खरीद ली हुई थी. पापा, we have bought this book, please make the payments for it. Now I never told them to have a habit of reading book. I never told them to inculcate this habit. They inculcate this habit slowly and gradually by seeing us doing it. बच्चा वही करता है जो सुबह से शाम तक आपको करते हुए देखता है. अगर आपका मैक्सिमम टाइम टीवी में जाता है, अगर आपका मैक्सिमम टाइम मोबाइल में जाता है, अगर वो देखता है कि पापा मम्मी के बीच में डिबेट हो रही है, कोई हॉट डिस्कशन हो रहा है, वो देखते हैं कि हमारी फैमिली में कौन कौन कैसा कैसा बिहेव करता है, यहाँ झूठ बोलने का कितना कल्चर है, वो सारी की सारी चीजें स्लोली एंड ग्रेजुअली बच्चे के दिमाग में प्रोग्राम्ड होती हैं. उसे ये फर्क नहीं पड़ता ये सही है या गलत है. I give you another example. How did your child started speaking? A 3-year-old child can speak the language which is spoken in your family. अगर आपकी फैमिली में पंजाबी बोली जाती है तो बच्चा 3 साल का बच्चा पंजाबी बोल सकता है. अगर आपकी फैमिली में सिंधी बोली जाती है या कोई और लैंग्वेज बोली जाती है तो आपका बच्चा वो लैंग्वेज बोलना सीख जाता है. आपने उसको कुछ वर्ड्स बोलना सिखाए होंगे, लेकिन आपने कभी उसको ग्रामर नहीं सिखाई, सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं सिखाए, बोलने की आर्ट नहीं सिखाई. बच्चा 3 साल का बच्चा कैसे बोलना सीखा? वी कॉल दिस मॉडलिंग in the field of psychology, कि बच्चा उस बिहेवियर से आपको देख देख करके उसको लेता रहता है. आप ऐसी सिचुएशन डाल दीजिए कि फैमिली में एक बच्चा अगर अब्यूज करने की एनवायरमेंट है फैमिली में, तो आप देखेंगे वो बच्चा भी ऑब्वियसली लैंग्वेज बोलना सीख जाएगा. आई गिव यू वन एग्जांपल. हमारे एक रिलेटिव है, उनकी फैमिली में बॉयज ही बॉयज है. काफी टाइम के बाद उनके यहाँ पर एक गर्ल पैदा हुई. अब वो क्या था कि जितने वहां पे बॉयज थे, 3-4 वो ब्रदर्स थे, फिर उनके बहुत सारे बेटे, तो करीब करीब घर में 8-10 मेल थे और कुछ ही फीमेल्स थी. तो जब ये डॉटर बड़ी हो रही थी तो सब देखती थी कि जितने मेल्स कैसे बोलते थे, जितने बच्चे कैसे बोलते थे, मैं ये करूंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं ये करूंगा. तो वो द डॉटर ऑल्सो स्टार्टेड स्पीकिंग द सेम थिंग. नोबडी टॉट हर. तो डॉटर भी ऐसे बोलती, मम्मी मैं खाऊंगा. बड़ी मुश्किल से उसको चेंज करना पड़ा. कहाँ से आया? एनवायरमेंट से आया दोस्तों. सो वी मस्ट चेक द एनवायरमेंट एट फैमिली कि हम किस तरह का एनवायरमेंट उस बच्चे को दे रहे हैं, बिकॉज बच्चा वही करेगा जो उसको दिख रहा है. और एक चीज आपको ये समझने की जरूरत है कि आपका जो रोल है बच्चे की जिंदगी में, वो एक मल्टीपल रोल है. मल्टीपल का रोल नहीं है. वो जमाना गया जब आप बच्चे होते थे और आपके पेरेंट्स बड़े होते थे. इन दोज डेज parenting used to be very strict, and there used to be only one relationship, the parent and child. There was no third relationship. But today the environment is very open, relationships are very open, parents are giving freedom to their kids without any discrimination. अगर वो बच्चा, तो अब सिचुएशन अलग हो चुकी है दोस्तों. पहले तो डॉटर और सन में बहुत डिफरेंशिएशन होता था अपब्रिंगिंग में, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि डॉटर्स को ज्यादा फ्रीडम और लिबर्टी है, इवन सन्स के साथ, सन के कंपैरिजन में. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड that you are not only parent at home, you are also their friends,
you are also their colleague, you are also their teacher, so you have multiple role. और जब आप अपने अपने बच्चों के साथ उस फ्रेंडशिप के रोल में आ जाते हैं तो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, बच्चे को कोई तकलीफ होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं कोई भी इश्यू उसको बॉदर कर रहा है, वो आपके साथ शेयर करेगा। बहुत सारे बच्चे अर्ली एज में डिप्रेशन का शिकार होते हैं और रीजन ये है कि उनको कोई ऐसी चीज बॉदर कर रही होती है विच दे आर नॉट एबल टू शेयर विद एनीबडी। सो प्लीज अंडरस्टैंड योर रोल एज अ फ्रेंड विद योर चाइल्ड। फॉरगेट अबाउट, आई हैव स्टिल सीन कि बच्चे कुछ कहना चाहते हैं बट पेरेंट्स के सामने, खास करके डैड के सामने, उनकी कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती। सो वो जाकर के कभी टीचर के साथ बात करते, कभी फ्रेंड्स के साथ बात करते, कभी किसी और के साथ बात करते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू स्पीक द सेम थिंग विच इज ट्रबलिंग देम। स्कूल में या कोचिंग में या बाहर में किसी ने किसी बच्चे को बॉदर किया, उस बच्चे की हिम्मत होनी चाहिए कि वो आपके साथ खुल करके बात कर सके। और जब बच्चा अपनी परेशानी के बारे में आपको बताए तो आप उसको जज नहीं करेंगे, उसकी परेशानी को बच्चे की तरह समझने की कोशिश करेंगे। हमने देखा है कि सम टाइम व्हेन चाइल्ड ट्राइज टू शेयर द चैलेंजेस ही और शी इज फेसिंग, बट पेरेंट्स उसको ठीक से नहीं सुनते, उसको डांट के चुप करा देते या उसको जज करते, अरे यू कैन डू दैट, क्या फालतू बात करते हो, पढ़ाई में तो तुम्हारा मन लगता नहीं है। सो प्लीज यू हैव टू पुट योर शूज, पुट योर फीट इन द शूज ऑफ द चाइल्ड। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप वो आप अपनी अथॉरिटी को, पावर को मत यूज करें कि बच्चा छोटा है, मेरा है तो सारा अधिकार मेरा इस पे होगा। लेकिन अगर बच्चे को लगता है कि माई फादर माई मदर इज टू डिक्टेटर, दे डू नॉट अंडरस्टैंड मी, दे कीप ऑन स्कॉल्डिंग मी, दे कीप ऑन गिविंग इंस्ट्रक्शन मी, आज वो आपकी इज्जत करता है, छोटा है, मार के डर से वो सुन सकता है, लेकिन जिस दिन दोस्तों वो बड़ा होगा ना, वो आपके लिए वो जो रेस्पेक्ट होना चाहिए वो नहीं रहेगा। और वो रेस्पेक्ट कब होगा? जब आप एज अ फ्रेंड वो वार्मथ और वो लव एक दूसरे के लिए आप इनकलकेट करोगे, तब जाकर के वो चीज आप तो उसके दिल में आप डाल पाओगे। एक बहुत ही भयानक सच, इट्स अ वेरी वेरी बिटर ट्रूथ आई वुड लाइक टू शेयर हियर विद यू। Buckminster Fuller is a renowned author and child psychologist. He said, "All children are born genius." My dear friends, note me. किसी भी घर में पैदा हुआ हो, इवन स्लम्स में पैदा हुआ हो, गांव में पैदा हुआ हो, न्यूयॉर्क में पैदा हुआ हो, कोटा में पैदा हुआ हो, रिच फैमिली में पैदा हुआ हो, पुअर में पैदा हुआ हो, इलिटरेट फैमिली में पैदा हुआ हो, वो सारे के सारे बच्चे जीनियस होते हैं जब वो पैदा होते हैं। बट कुछ टाइम के बाद उन 10,000 बच्चे अगर पैदा होते हैं, उसमें से 9,999 बच्चों को हम धीरे धीरे एवरेज बना लेते हैं। हु हैज दैट क्रेडिट गोज टू हुम? वी गाइस। वो एटमॉस्फेयर को देख करके, हमारी बातें सुन सुन करके, हम उसको ग्रोन अप्स को हम धीरे धीरे जब वो ग्रो करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, बच्चे बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, बच्चों को लगता है मुझसे नहीं हो पाएगा। हम बड़े लोग मिलके, एडल्ट्स लोग मिलकर के उनको एवरेज बच्चा बना देते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हम कैसे बच्चे को, फिर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्यों यहाँ हमने छोटे बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया है। पहले 8 साल तक बच्चे की मैक्सिमम प्रोग्रामिंग हो जाती है। फिर आपको लगता है मेरा बच्चा तो बड़ा शर्मिला है, बहुत हेजिटेट करता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा नहीं है, उसकी मैथ्स अच्छी नहीं है, लेकिन आपने पहले 8-9 सालों में उसके माइंड में ऐसी क्या चीजें फिल कर दी है, द चाइल्ड इज नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट। सेकेंड थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इट कि आज का जो बच्चा है, वो बच्चा वो नहीं है जब आप बच्चे थे। मैंने शुरुआत में आपसे एक ही बात बोली कि हम वैसे ही पेरेंटिंग करते हैं जैसे शायद हमारी पेरेंटिंग हुई है, या जो हमारे इर्द गिर्द करते हैं। मेरे फादर एक सेंटेंस बोला करते थे जब हम छोटे थे, स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। डंडा छोड़ा बच्चा बिगड़ा। ये उस जमाने की फिलॉसफी थी, बट ये आज के जमाने की फिलॉसफी नहीं है। आज का बच्चा, जिसको हम कहते हैं गूगल जनरेशन का बच्चा है, आज एक 4 साल के बच्चे को, 5 साल के बच्चे को आप अपना स्मार्टफोन दे दीजिए, वो आपसे बेहतर स्मार्टफोन को चला सकता है, वो आपसे ज्यादा स्मार्ट है, आपसे ज्यादा आता है। और आप कहते हो अरे आजकल के बच्चे तो सुनते ही नहीं है, बिगड़ गए। अरे वो आज की दुनिया का बच्चा है, आप उसे उस जनरेशन का बच्चा मत बनाइए जिस जनरेशन से आप आते हो। अगर आपने अपने बच्चे को उस जनरेशन का बच्चा बना दिया जिससे आप आते हो, तो इस दुनिया में वो टिक नहीं पाएगा। ही विल नॉट, शी विल नॉट बी रेलेवेंट इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज द नेसेसिटी। यू कैन नॉट कीप कंप्यूटर्स एंड मोबाइल अवे फ्रॉम द चाइल्ड। आपको उसको ये बताना है हाउ टू यूज मोबाइल, हाउ नॉट टू यूज मोबाइल, what how you can use for your benefit, how to use computer. I gave computer to my child independently when he was 6 year old. मैंने अपने बच्चे को 6 साल की उम्र में कंप्यूटर दे दिया इंडिपेंडेंट।
उसके रूम भी उसका अलग होता था। और कभी हमने उसको हमने हमारा मैकेनिज्म रखा, लेकिन कभी ये डाउट नहीं किया कि ये बिगड़ जाएगा। और आज हालत ये है दैट चाइल्ड, स्मॉल चाइल्ड, व्हेन ही वाज 12 ईयर ओल्ड, उसका राजस्थान पत्रिका में एक बहुत बड़ा फीचर प्रेजेंटेशन आया था दैट एट द एज ऑफ 12 he had the developed an ability that he could speak in American English, he could speak British English, he could speak Australian English on his own. मुझे तो पता भी नहीं था। और उसने 50 कंट्रीज में अपना फ्रेंड्स का एक नेटवर्क क्रिएट किया, और अभी उसने 12 पास किया है, एंड ही इज डूइंग समथिंग ग्रेट इन इंटरनेशनल म्यूजिक। तो अभी आप इसको समझने की कोशिश करना पड़ेगा कि बच्चों को आपको फ्रीडम देनी पड़ेगी। बच्चों को आज की जरूरत में अगर आप कंप्यूटर और मोबाइल उससे दूर रखोगे तो आप उसको एक इलिटरेट चाइल्ड की दिशा में ले जा रहे हो। लेकिन हाँ, आपको बच्चे को ये विजडम देने की जरूरत है दैट हाउ टू यूज दैट इंस्ट्रूमेंट, हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर एक्टिंग एज अ फ्रेंड ऑफ योर चाइल्ड। अरे कुछ नहीं फायदा श्रेयांश, मैंने आपको म्यूट कर दिया है। ओके, सो अब हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको बता रहा हूं दैट इफ यू वांट योर चाइल्ड टू चेंज, व्हाट यू नीड टू डू, you need to tell your child interesting and inspiring story. एक तो हम बोलते हैं बच्चे को do this, do not this is good for you, you will not be able to do anything. और दूसरा तरीका है, बच्चा ऐसे नहीं बदलेगा, उसका कारण है, बच्चा छोटे से 7-8 महीने से का जब बच्चा होता है ना, तब से उसकी स्कोल्डिंग शुरू होती है, तब से वो नो, डोंट डू दिस, डू नॉट डू दिस, यू आर वेरी नॉटी, वो सुनना शुरू होता है। और जब तक वो टीनेजर बनता है, मतलब 13-14 तक, उसके दिमाग में एक बिलीफ क्रिएट हो जाता है दैट आई हैव 2 क्रिएचर्स एट माय होम, मेरे मॉम और मेरे डैड, उनका कोई और काम नहीं है, सुबह से शाम तक मुझे ये बोलना है डू दिस, डू नॉट डू दिस। तो उसके दिमाग में एक ऐसा बिलीफ क्रिएट होता है कि वो आपकी बात सुनता है लेकिन उस पर एक्ट नहीं करता। तो आप बोलते हो उसको बेटा खूब पढ़ना चाहिए, बेटा डू दिस डू दैट, लेकिन बच्चे के दिमाग में बिलीफ क्या है, ये जो 2 लोग हैं ना मेरे घर में, ये सुबह से शाम मुझे पकाते रहते हैं, ये उसके दिमाग में हो जाता है। एंड दे डू नॉट दे लिसन टू यू बट दे डू नॉट एक्ट। व्हाट इज द गुड थिंग, आप हैबिट डालिए, उनको कुछ अच्छी बुक्स, कुछ अच्छी स्टोरी उनके साथ शेयर करिए। आज मान लीजिए आप उसके साथ कल्पना चावला की स्टोरी शेयर कर रहे हैं, शेयर करिए, लेकिन एक बात बता दूं मैं, जब आप कल्पना चावला की स्टोरी आप उसके साथ शेयर करें, तब आप कंक्लूजन मत दीजिए, देख बेटा उसने बहुत अच्छा काम किया तो तुम्हें भी ऐसे करना है। जैसे आप ये बोलते तुम्हें भी ऐसे करना है, तो बच्चे का माइंड वापस एक्टिवेट हो जाएगा, अच्छा मतलब मुझे फिर से ज्ञान देने की कोशिश की जा रही है। सो प्लीज डू नॉट डू दैट, टेल द स्टोरी। स्टोरीज इनडायरेक्ट इंपैक्ट करती है, जैसे आज तक बचपन से के लेके आज तक आपका बच्चा जो है वो इनडायरेक्ट इंपैक्ट आपके बिहेवियर और घर के एनवायरनमेंट को देख करके उसके दिमाग में हुआ है, स्टोरीज भी वही इंपैक्ट करती है। कोशिश करिए छोटी छोटी स्टोरी बुक्स लाके दीजिए उसको, फोर्स मत करिए, उसकी इच्छा से उसको पढ़ने दीजिए। अगर और कभी कभी जब आप बैठे हो कि बच्चा अच्छे मूड में है, आपके साथ अच्छे से बात कर रहा है, उस वक्त मौका देख करके उसको अच्छी सी स्टोरी सुनाइए। मैं नहीं कहता पुरानी स्टोरी सुनाइए, आज के जो अचीवर्स हैं, विराट कोहली हुए, कल्पना चावला हुई, बिल गेट्स हुए, इनके बारे में, जो नए नए स्टार्स हैं उनके बारे में स्टोरी, उन्होंने लाइफ में कैसे स्ट्रगल किया, उन्होंने कैसे रिसोर्सेज नहीं थे उनकी जिंदगी में तो कैसे उसके बाद भी उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। ऐसी स्टोरी जब आप सुनाते हो उसका कंक्लूजन मत दीजिएगा, मत बोलिएगा बेटा यू हैव टू डू लाइक दिस, बेटा लुक एट देम व्हाट यू हैव डन, what they have done and you are not even studying, do not compare them। तो ये आप रूल बना लीजिए, और मदर्स कैन डू इट ब्यूटीफुली, फादर्स कैन आल्सो डू, बट मॉम्स आर मोर एक्सपोज टू देयर केस, क्योंकि वो ज्यादा टाइम वो स्पेंड करते हैं। बट आप ये देखिए कि बहुत सारे बच्चे अपने फादर को रोल मॉडल मानते हैं, क्योंकि वो फादर को बहुत सारी चीजें करते हुए देखते हैं, तो फादर का भी बहुत बड़ा रोल है। और फादर जो है अगर उनको ये बोलते हैं कि बेटा तुमको ऐसा करना है, ये दिस इज सक्सेस स्टोरी ऑफ दिस पर्सन और दैट पर्सन, तो उस केस में भी बच्चे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये आप आदत डालिए ये सक्सेस स्टोरी बच्चों को सुनाने की, और जब ये सक्सेस स्टोरीज आप सुनाते हैं तो बच्चे डेफिनेटली बहुत जल्दी इम्प्रेस होते हैं। Just a moment, then somebody again. लेट मी टेल यू अ स्टोरी, एक स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको। एक 8 साल की बच्ची थी, उसका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था, तो उसके पेरेंट्स ने कुछ
8-10 बच्चों को उनके पेरेंट्स के साथ घर पे डिनर के लिए इनवाइट किया. This daughter, the girl child, was very excited for the birthday celebration because she knows that she's going to cut the cake, she's going to get so many gifts from so many people coming to home. So she was very excited. She wore a new frock, new dress, and she was desperately waiting for the guests to come. So slowly and gradually guest starts coming at home. तो वहां पर कुल 10-12 पेरेंट्स को उनके बच्चों के साथ बुलाया गया था. सब लोग कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लेकर के आए थे. तो सब उस डॉटर को गिफ्ट देते हैं. अब वो इतनी एक्साइटेड है. देखो 7-8 साल के बच्चे को आप ये नहीं बोल सकते कि द चाइल्ड हैज टू बी हैव द मैनर्स एंड एटिकेट्स एंड डू एंड, उसको जीने दीजिए. बच्चा बच्चा होता है. बच्चा किसी टैग के साथ नहीं जीता, बच्चा किसी स्टेटस के साथ नहीं जीता. बच्चों को ये याद नहीं रहता मेरे पिताजी माताजी कितने बड़े लोग हैं. वो बच्चा बिल्कुल ओरिजिनल और नेचुरल एक्ट करता है. तो जब उसको गिफ्ट्स मिल रहे थे तो द डॉटर वाज सो डेस्परेट. She was unwrapping all the gifts and she was started seeing and feeling happy. So when she unwrapped all the gifts, all 10 children who gave gift to that girl were standing close to her. So she got some few cars, few dolls, few educating toys and all. So 10 toys she had along with her. She was feeling so happy looking at other kids and making feel that yes, I am somebody because I have 10 gifts and you don't have anything. Now all those 10 childs were feeling all like playing with those toys, but they could not tell it. But 2 or 3 kids were slightly naughty and confident, so they tried to take one toy from that girl child. So this she didn't allow. No, you can, उसने छीन लिया वापस से. But they were very aggressive. So those 2 kids tried to snatch those toys from the girl child. But ये भी बहुत तेज थी लड़की, इसने भी छीन लिया. अब इसने में कुछ छीना झपटी हुई और कुछ बच्चे रोने लगे. तो दूर से उसके फादर ये देख रहे थे, बाकी पेरेंट्स भी देख रहे थे. तो फादर को बड़ा एम्बैरेसमेंट हुआ. अब यहाँ हम कई बार गलती करते हैं कि चाइल्ड के बिहेवियर से हमें ऐसा लगता है कि जैसे मेरी कोई इंसल्ट हो रही है, मेरा कोई ईगो हर्ट हो रहा है. लेट अ चाइल्ड बी अ चाइल्ड. Don't associate child's behavior with your status. Don't associate child's behavior with the ego. So ये चल रहा था. पापा को लगा ये तो कुछ बेटी अच्छा नहीं कर रही है और मेरी इंसल्ट हो रही है सब लोगों के सामने, because she is behaving like an ill-mannered child. So he goes to the daughter. प्यार से बोलता, hello Simi, what happened? Papa, they are trying to take my toys. So what? They have given these toys to you. These toys are going to be with you. Why don't you let them play with those toys? No, Dad, I won't give. Toys belong to me. बेटा वो तो छोड़ के चले जाएंगे, उनको खेलने दो. नहीं पापा, I will not give. So child gets aggressive. When father is trying to convince her, child is getting aggressive. पापा को गुस्सा आया. अब यहाँ पेरेंट वाली अथॉरिटी दिमाग में आई. पापा की एक और इंसल्ट हो गई. पहले तो ये इंसल्ट थी कि बच्ची कितनी इल मैनर्ड है कि वो अपने टॉयज किसी और के साथ नहीं कर रही है, कोई छीनने की कोशिश कर रहा है तो एग्रेसिव हो रही है. अब तो एक और इंसल्ट हो गई फादर की कि उनकी बेटी उनका कहना भी नहीं मानती है. ये सब हम एज अ पेरेंट ईगो पर लेकर के जब चाइल्ड के साथ मिसबिहेव करते हैं, तब हम चाइल्ड को एक्चुअल में स्पॉइल कर रहे होते हैं. आई एम नॉट सेइंग यू शुड बी वेरी सॉफ्ट टू योर चाइल्ड. I'm not saying you should not be strict to your child, but there has to be combination. You need to understand the emotion of the child. अब पिताजी को गुस्सा आया और उनको जोर से बोला, ये कौन सा तरीका है? You don't have that manners. You can't play with your friends. और पिताजी ने गुस्से में उठा करके वो टॉयज बच्चों को बांट दिए. Now the girl starts crying so badly that she goes inside the room. उसकी मॉम उसके साथ जाती, but she is not ready to keep quiet. And पूरी पार्टी थोड़ी सी स्पॉइल सी हो गई. फादर को या पेरेंट्स को लग रहा है कि मेरी बच्ची कितनी एग्रेसिव है, कितनी इल मैनर्ड है, ये किसी के साथ शेयर नहीं करती. लेकिन आपने ये समझने की कोशिश नहीं की कि अगर आपका 8 ईयर ओल्ड चाइल्ड लोगों के साथ मिक्स नहीं हो रहा है, लोगों के साथ अपनी चीज नहीं बांट रहा है, इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई इनसिक्योरिटी है. और वो इनसिक्योरिटी क्यों और कब पैदा हुई, आपको समझने की जरूरत है. 3 days back I was counseling a 28-year-old lady, अनमैरिड, एंड उसको बहुत साइकोलॉजिकल इश्यूज थे, कॉन्फिडेंस का इश्यूज था. शी इज वर्किंग इन मुंबई इन फिल्म इंडस्ट्री एज अ असिस्टेंट प्रोड्यूसर, बट देयर वर सर्टेन इश्यूज. एंड
जब मैंने डिस्कस किया था मुझे पता चला कि उसको बचपन से इनसिक्योरिटी है, बिकॉज उसकी जो बड़ी बहन थी कंपैरेटिवली ज्यादा सुंदर थी दिखने में, और उसके पेरेंट्स और बाकी रिलेटिव बड़ी बहन को ज्यादा प्रायोरिटी दिया करते थे, और तब से वो इनसिक्योरिटी उसके अंदर डेवलप हुई। आप सोच सकते हैं। मैं कहता हूँ कोई मदर फादर अपने बच्चे के दुश्मन नहीं होते, लेकिन जाने अनजाने में आपको पता नहीं होता, कई बार छोटी छोटी चीजें बच्चे को बॉदर करती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बच्चे के दिल में कोई इनसिक्योरिटी है, कोई ट्रबल है, तो आपको डांटने से या उसको कंट्रोल करने से वो जाने वाली नहीं है। वो बड़े होने तक, मैंने कहा ना, एक बच्ची के साथ 5 साल की एज में कुछ हुआ, 28 ईयर्स एज जब उसकी शादी होने वाली, तब तक भी वो उस लोड को कैरी कर रही है, तब तक भी वो प्रॉब्लम उसके साथ है। तो आपको बच्चे को अगर चाहते हो कि उसको, यू हैव टू हेल्प द चाइल्ड टू बी द समथिंग इन दिस वर्ल्ड, as I told you, keep sharing inspirational stories with them. Don't ever share negative stories with them. Don't ever share negative news with them. Don't ever discuss negative things in front of a child, whether child sleeping or awake, whether playing in another room, but child grabs everything, my dear friends. So आपको क्या करना है छोटे बच्चे से ही, why Tendulkar could become Tendulkar, why Tendulkar could become an international player at the age of 16, बिकॉज मुझे मालूम है कि जब वो तेंदुलकर 1.5 साल के थे तब पहली बार उनके पेरेंट्स ने उनको बैट पकड़वाया था। और हम तो अगर बच्चा क्रिकेट में अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं हम तो हर चीज को उनकी स्टडी से एसोसिएट करते कि तुम पढ़ाई में तो ध्यान नहीं है, 24 आवर्स खेलते रहते हो। अरे भाई, हो सकता है आपका बच्चा अगला तेंदुलकर बन जाए, अगला कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन जाए, लेकिन बचपन से उसकी आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि आपके बच्चे का इंक्लिनेशन कौन से एरिया में है, और उस बच्चे को तभी से बड़े बड़े सपने देखने में मदद करिए। डोंट इम्पोज योर डिसीजन, डोंट इम्पोज योर इंस्ट्रक्शन, उनको फैसिलिटेट करिए। दैट लुक, वन डे टीवी पे कोई आ रहा है, लुक वन डे यू विल ऑल्सो बी प्लेइंग क्रिकेट, लुक वन डे यू विल ऑल्सो बी डूइंग दिस। कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, ये मत बोलो बेटा तेरे को भी ऐसा करना पड़ेगा, तेरे को भी ऐसा करना है। आप उसको दे रहे हो, एक दिन बेटा मैं भी, तुम भी यहाँ पर आओगे, तुम भी ये करोगे, और उसको गाइड करिए टू रीच देयर व्हाट यू हैव टू डू टू 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 रीच देयर। एक बार क्या हुआ दोस्तों, एक बच्चा था 6 साल का, उसने जिद की पापा से, शहर में मेला लगा हुआ था, जैसे हमारे कोटा में भी दशहरा मेला बहुत फेमस है, बच्चे जिद करते हैं पापा मेले में जाना है तो बच्चा जिद कर रहा था। तो पापा को एक दिन संडे को टाइम मिला, मॉम की तबीयत ठीक नहीं थी, तो पापा अकेले बच्चे को मेले में लेके गए। काफी भीड़ है, रश है। जैसे मेले में एंट्री किया, चाइल्ड वाज एक्साइटेड। बच्चा जो है पापा की उंगली पकड़ करके चल रहा था। बच्चे ने, थोड़ी देर के बाद पापा ने देखा कि बच्चा, द चाइल्ड इज नॉट हैप्पी, और बच्चा जिद करने लगा, पापा वापस चलो घर पे। उन्होंने कहा बेटा यू वर टेलिंग मी फॉर लास्ट 1 वीक कि मेला आना है, बट वाई, नहीं पापा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो। बच्चा रोने लगा। पापा को समझ नहीं आया क्या हुआ, अभी तो 10 मिनट भी नहीं हुए, अभी तो उसने कोई टॉय भी नहीं खरीदा, अभी तो उसने आइसक्रीम भी नहीं खाई। सडनली पापा ने नोटिस किया, जब नीचे देखा तो बच्चे के शू का एक लेस खुला हुआ है। तो पापा जैसे ही जमीन पर बैठे बच्चे के शू के लेस बांधने के लिए, तो उन्होंने देखा, क्योंकि वो जब बैठे तो बच्चे की हाइट पर आ गए, तो उन्होंने देखा कि बच्चे को भीड़ के पैरों के सिवा मेले में कुछ दिख नहीं रहा है। The child is not able to see anything except the legs of the people. Then he realized कि बच्चा तो मेला देख ही नहीं पा रहा। तो उन्होंने बच्चे को गोद में उठाया, तब जाके बच्चे को मेला दिखने लगा, and the child was happy. And then they spent 1 or 2 hours in the fair. My dear friends, बच्चे की खुशी और दुख को समझने के लिए आपको उसके लेवल पर जाना पड़ेगा। अगर आप अपने एडल्ट माइंड के साथ उनके साथ कम्युनिकेट करोगे, यू विल नेवर बी अंडरस्टैंड देयर इमोशंस। You have to go to that level, a 3-year-old child's level, a 5-year-old child's level, a 11-year-old child's level, कि उस 10 साल के बच्चे के, 5 साल के बच्चे के क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या तकलीफें हो सकती हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है। एक बार मैंने आपको बता रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग बात, क्योंकि मैं यहाँ पर ये प्रोग्राम इमैनुअल के बैनर पे कर रहा हूँ, और मैं ये बताना चाहूंगा कि इमैनुअल में जो लिटिल चैम्प्स सेक्शन है वो कितना डेडिकेटेड है, और किस लेवल तक दीपिका मैम उनकी इंचार्ज और उनकी लीडरशिप में जिस तरीके से बच्चों को बहुत माइन्यूटली छोटी छोटी चीज़ों के लिए समझा जाता है, उनकी अपब्रिंगिंग की जाती है,
मेरे छोटे बेटे को मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगा, कोटा के माने हुए स्कूल में एडमिट किया, नर्सरी स्टैंडर्ड में। उसका बड़ा भाई किसी दूसरे स्कूल में पढ़ता था। 2-3 दिन स्कूल जाने के बाद वो बच्चा स्कूल ना जाए, जिद उठाते ही रोने लगे, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। नोबडी वाज अंडरस्टैंड। तो हमें लगता है ना कि जबरदस्ती निकम्मापन दिखा रहा है, जबरदस्ती ये दिखा रहा है, इसको घर में ही रहना है। वी डिड नॉट अंडरस्टैंड। 15 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। मुझे लगा देयर इज सम इश्यू। तो आई टोल्ड माय वाइफ टू स्पीक टू द मॉम ऑफ वन मोर चाइल्ड हु इज residing in our own colony, and the child was going to the same school and same class. You know, उसके साथ भी वही इशू था। और जब पता चला, हमने कुछ और पेरेंट्स से बात किया जो पिछले साल वाले पेरेंट्स, तो पता चला देयर वर 2 इश्यूज। नंबर 1, उस क्लास में 3-4 बच्चे इतने बदमाश थे कि वो बाकी बच्चों को पीटते थे। नर्सरी की बात कर रहा हूँ, देखिए नर्सरी में भी बच्चे के साथ बुलिंग हो सकती है और टीचर्स को पता नहीं है। और दूसरा, वो जो टीचर थी, क्योंकि बाद में जब हमने कंप्लेन किया तो पता चला वो टीचर इतनी मतलब क्या बोलूंगा, इंटॉलरेंट थी, या उसको बच्चों की साइकोलॉजी का पता नहीं था, दैट शी यूज्ड टू पनिश एक बच्चा नर्सरी क्लास का जो पहली बार क्लास में जा रहा है, उस बच्चे के साथ मारपीट किया करती थी। एक बड़े प्राइवेट स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, कोटा के। एंड उसको हमने एडमिट ही थोड़ा लेट किया था, सितंबर में। और अक्टूबर के एंड तक जाते जाते हमें ये पता चला। एंड अब एक 4-3 साल का बच्चा शायद ये ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, लेकिन वो आपको सिग्नल दे रहा है रो करके या अनप्लेजेंटनेस शो करके, व्हाई इज नॉट गोइंग टू स्कूल। जबकि मेरा बड़े बड़े बेटे ने कभी ऐसा नहीं किया। एंड देन वी डिसाइडेड, अक्टूबर की बात है, अक्टूबर से हमने उसको स्कूल में भेजना बंद कर दिया। फी हमने पूरी डिपॉजिट कर दी थी। यू विल वंडर, स्कूल से कभी पलट के हमारे पास फोन तक नहीं आया कि आपका बच्चा क्यों नहीं आ रहा। सी द मैनेजमेंट। एंड वी डिसाइडेड टू चेंज द स्कूल। मेरे बेटे का, बड़े बेटे का जो स्कूल था थोड़ा दूर था, लेकिन हमने उसको वहां भेजा। और जब उस स्कूल में एडमिट करा, इसकी वजह से उसका 1 साल खराब हुआ जिंदगी का, क्योंकि अक्टूबर में डिसीजन लिया, मैंने कहा ठीक है इसको अप्रैल से एडमिट करेंगे। एंड द नेक्स्ट अप्रैल वी एडमिटेड हिम। जब से हमने उसको नए स्कूल में एडमिट किया ना, कभी हमें उसको जगाने की जरूरत नहीं पड़ी। एक आवाज देते थे उसको, पार्थ, वो उठ जाता था, कभी रोया नहीं। एंड ही वाज सो हैप्पी गोइंग टू स्कूल। नाउ सी, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बच्चे का अगर बिहेवियर पिक्यूलियर है, बच्चा कोई चीज लाइक नहीं कर रहा है, और इसीलिए आपको ये देखने की जरूरत है। आप कभी भी इमैनुअल में जाइए, कभी भी उनके टीचर से मिलिए, कभी भी वहाँ का लोकल एटमॉस्फेयर देखिए, उनकी अपब्रिंगिंग देखिए, तो कहीं ना कहीं मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, तो वो बहुत मैटर करता है। और फिर भी आपको कोई ऐसी चीज नजर आती है। मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी में बहुत काम किया। मैं एक बार सिंगापुर में था, वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल स्कूल है, तो वहाँ की जो लिटिल चैम्प, जो छोटे बच्चों के इंचार्ज सेक्शन थे, वहाँ की जो इंचार्ज थी, शी वाज अ लेडी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। मैंने उनसे बात की कि हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम इंडियन स्कूल्स एंड व्हाट यू आर डूइंग हियर। तो शी सेड वन थिंग कि हमारे यहाँ पे कोई भी नया बच्चा जब एडमिशन होता है ना, तो वो अकेला फील ना करे, तो हम जब जैसे वो स्कूल में आता है, उस बच्चे को के साथ हम एक बच्चे को अटैच कर देते, जिसको बोलते हैं बडी। वो बच्चा उसके साथ रहेगा कुछ दिनों तक, उसको हेल्प करेगा कि किधर टॉयलेट है, लंच में उसको हेल्प करेगा, कोई बच्चा उसको परेशान ना करे, वो कॉन्सेप्ट है। प्लस वहाँ टीचर्स को इस लेवल तक ट्रेन किया है कि टीचर आके पढ़ा के चली गई, वो सब नहीं होता। उनको ये ट्रेन किया हुआ है कि अगर बच्चे की शक्ल से, बच्चे की हाव भाव से अगर आपको ऐसा लगता है कि आज कोई बच्चा थोड़ा सा सहमा सा है, डरा सा है, कुछ इशू है, तो the teacher will try to talk to the kid. If kid is not able to tell, the teacher will speak to parents if is there something wrong with the child. To that extent you have to understand, my dear friends. आप ये मत सोचिए कि आपका चाइल्ड उतना एक्सपर्ट बने जितना, एक सेकंड, there's some issue. Okay, so do not expect a perfect child. If I give so many examples, like I give the example of Tendulkar was good at cricket, but was not good at studies. लेकिन हम आज के कई पेरेंट्स को मैं जानता हूँ, वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ाई भी कर ले, स्कूल में टॉप भी आ जाए, कोई स्पोर्ट्स का गेम हो या कोई रेस हो उसमें भी फर्स्ट आ जाए, कॉन्फिडेंस में भी टॉप हो,
स्पीच भी दे लें, इफ देयर इज एनुअल फंक्शन वहाँ पे डांस भी कर लें, घर पे कोई गेस्ट आए उनके साथ बात भी कर लें। अरे भाई, आप बच्चा चाह रहे हो या रोबोट चाह रहे हो? आप अपने आप को देखिए, आप ये भी चाहते हो अच्छा उसके बेचारे के 96% आए, किसी में 98, किसी में 92, एक सब्जेक्ट में 88 आए। बेटा इसमें 88 क्यों आए? इस सब्जेक्ट को अच्छे से करना है। अरे भाई, उसको उसको थोड़ा जिंदा रहने दीजिए। उसको उसकी कभी अगर आपके बच्चे ने पूछ लिया कि मॉम यू आर नॉट हैप्पी सीइंग 96% इन माय स्कोर कार्ड, जरा आपका स्कोर कार्ड तो बता दीजिए 5th स्टैंडर्ड का, आपका कैसा था? तब तब हमको लगेगा वो चीज। तो मैं ये कहता हूं कि हमें रोबोट नहीं चाहिए, हमें बच्चा चाहिए। हर बच्चे की कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक होती है, कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है, कोई ना कोई पसंद होती है, और हर इंसान की कोई ना कोई वीकनेस होती है। जैसे आपकी भी कोई वीकनेस है, तो हमारी बच्चे की भी वीकनेस होती है। उसकी जो लाइकिंग्स है, उन लाइकिंग्स को आप देखिए और उस बच्चे को उस एरिया में, मैं ये नहीं कहता कि अगर वो मैथ्स में बहुत अच्छा नहीं कर रहा तो उसको ठीक मत करिए, लेकिन प्रेशर क्रिएट मत करिए। ये एक्सपेक्ट मत करिए कि वो मैथ्स में भी 100 में से 100 लाए, इंग्लिश में भी 100 आउट ऑफ 100 लाए। देन कई लोग बोलते हैं मेरे बच्चा उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, माई चाइल्ड इज टू शाय। वाई? बिकॉज वेन a child is not doing somewhere good, we tell 100 dialogues to the child, but when child is doing good, we do not praise enough. We do not praise enough to the child. Specifically, bigger achievement may be once or twice in a year, but small achievements are plenty. So what needs to be done? Whenever child comes home with a broad smile, ask child, why? Oh, you seem to be very happy. Is there anything special today? कई बार बच्चा खुद आकर के बोलता है, मॉम आज टीचर ने मुझे ये गुड दिया, या ये चॉकलेट बनाया मेरे नोटबुक पे, और हम इतने बिजी होते हैं उसकी बात को अनसुना कर देते हैं या उसकी बात को तवज्जो नहीं देते हैं। लेकिन बच्चा जब स्माइल के साथ अपनी नोटबुक निकाल के देखा, मॉम आज मुझे वेरी गुड मिला, तो बच्चा जितना खुश है उससे ज्यादा खुशी आपको दिखानी चाहिए। ये जो छोटे छोटे अचीवमेंट से जब आप बच्चों को एनकरेज करते हो, तभी बच्चा बड़ी चीजों के लिए एनकरेज होता है, तभी उसका कॉन्फिडेंस कंपेरेटिवली आगे बढ़ेगा। अब हेल्दी ईटिंग हैबिट के ऊपर पेरेंट्स का ये कंसर्न होता है कि मेरा बच्चा घर का खाना नहीं खाता, सब्जियां नहीं खाता, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड का सिनेरियो है दोस्तों। ये आपके घर का चैलेंज नहीं, पूरी दुनिया का चैलेंज है। बचपन में हम भी हरी सब्जियां नहीं खाया करते थे, हमको भी कुछ चटपटी चीजें जो उस जमाने में अवेलेबल होती थी वही चाहिए होती थी। तो एक ये बेसिक सिचुएशन है। लेकिन मैं कहूँगा कि आपको अगर बच्चे के अंदर ईटिंग हैबिट डेवलप करनी है ना, तो बच्चा जब 1 साल का है तब से करनी चाहिए। और मैं ये भी नहीं बोलता कि बच्चों को आप बाहर का खाना मत खिलाइए, नहीं तो वो चोरी छुपे खाएंगे, लेकिन कुछ डिसिप्लिन रखिए। जैसे मुझे आज भी मालूम है, मेरे फादर का एक डिसिप्लिन था कि जो जो चीज़ें बाहर की हमें खाने में पसंद थी, उन्होंने डे फिक्स किया होता है। एक थर्सडे फिक्स किया होता, एक संडे फिक्स किया होता, तो हमें मालूम है थर्सडे को ये चीज़ मिलने वाली है, या हम हर महीने में एक बार बाहर खाना जाने वाले हैं। तो आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली बच्चों को कहानियों के माध्यम से उनको टारगेट नहीं करना, ये बताना है। लाइक आई टेल लेट मी टेल यू द केस ऑफ कनाडा। कनाडा की गवर्नमेंट ने अभी एक रूल बनाया है कि उन्होंने सारे शराब की दुकानें बंद कर दी है टेम्परेरीली, और सारे पिज्जा और बर्गर के आउटलेट्स बंद कर दिए हैं कि इससे इम्यूनिटी कम होती है और यू आर मोर प्रोन टू गेट इन्फेक्टेड विद कोरोना। अब ये एक फैक्ट है, इस फैक्ट को मैं इनडायरेक्टली कि मैं बच्चे के साथ शेयर करता हूँ बिना उसको ज्ञान दिए कि बेटा तुम्हें भी नहीं खाना चाहिए, वो उसको डिसीजन लेने दीजिए। तो ऐसी सिचुएशन आप करिए और बच्चों को बोलिए, बेटा you have to eat this and then Sunday you'll get this, you'll get one ice cream every week, you'll get one chocolate every week। अगर आप ऐसी कर देते हैं तो बच्चा शुरू, और ये हैबिट आपको शुरू से डालनी पड़ेगी, वन डे एक दिन में नहीं होती। हम आपको एक चीज बताऊं, मैं अभी आई वाज काउंसलिंग एन 18-year-old गर्ल, और मुझे पता चला कि कुछ उसने ऐसा काम किया जो घर वालों को पसंद नहीं आया, तो उसको डांटा, तो वो बहुत वायलेंट और एग्रेसिव हो गई। एंड किड्स पेरेंट्स आर रियली वरीड, दे केम टू मी। पूरी स्टडी करने के बाद चला कि वो लड़की ऐसी क्यों है, उन्हीं की वजह से। पहले 5 साल में उसको इतना पैम्पर किया फैमिली ने, कोई डिसिप्लिन करके नहीं सिखाया, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं सिखाए, और अब आप चाहते हो कि 8 साल तक तो उसकी प्रोग्रामिंग आपने पैम्पर्ड करके कर दी कि जो उसने मांगा वो मिलेगा उसको, तो बाद में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते।
वो तो वैसे ही बन गया। तो व्हाट आई डू, आई सजेस्ट यू कि स्लोली एंड ग्रेजुअली teach your parents, teach your kids about your healthy eating habits, और उनको फिक्स कर दीजिए भैया महीने में एक बार पिज्जा मिलेगी, या हफ्ते में एक बार बर्गर मिलेगा, या वंस इन अ मंथ विल गो आउट एंड हैव दिस, या आइसक्रीम का कब होगा। जब ये सिस्टम डाल देते हैं तो विद इन फ्यू मंथ्स यू विल नोटिस दे विल स्टॉप आस्किंग फॉर। और जो मैं कह रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर कह रहा हूँ। अभी हमने एक स्टोरी शेयर की थी कि द डॉटर वाज नॉट प्लेइंग शेयरिंग द टॉयज विद अदर्स, और ये होगा जब बच्चे बड़े होते हैं तो अपनी चीज अपने भाइयों के साथ बहनों के साथ नहीं बांटते हैं, और बड़े होते हैं तो प्रॉपर्टी के लिए झगड़ते हैं, छोटी छोटी चीजों में कंपटीशन होता है। ये होता कैसे है? क्योंकि बचपन से हमने उन बच्चों को शेयरिंग नहीं सिखाया। और ये शेयरिंग कैसे सिखाते हैं? और आप देखिए उनको आप सिखा नहीं रहे बल्कि उनको दूर लेके जा रहे हो। आपने कुछ अच्छा डिश बनाया, उसके लंच बॉक्स में पैक किया, ज्यादातर पेरेंट्स क्या बोलेंगे? बेटा किसी और को मत खिलाना, खुद ही खाना। You bought a new pencil or a new pencil box, you what instruction you don't give it to anybody, last time भी तुमने पेंसिल खो दी थी। So and then at home if you have two children and you are serving them dinner or lunch, you give them in separate plate, you finish yours, indirectly you are teaching them how not to share. I still remember I eat my lunch in my office at 2 o'clock. And whenever there is a special dish, my mom knows that there are quite a few people who eats along. वो अपना अपना टिफिन लेके आते हैं, but जब भी कोई स्पेशल डिश है, my mom makes it sure that she gives additional, so that अगर कोई स्वीट है, अगर कोई स्पेशल चीज बनी है, तो वो मेरे लिए नहीं 4 लोगों के लिए एक्स्ट्रा भेजती है। आप देखिए, दीज आर दी वैल्यूज। तो बच्चों को अगर आपने कोई अच्छी चीज बनाई है, उसको 2 एक्स्ट्रा दीजिए, बोले बेटा अपने फ्रेंड्स को भी खिला के आना। वाई? बच्चे को सिर्फ ये समझाया जाता है कि भैया तेरी बर्थडे पे तेरे को चॉकलेट बांटनी है, बाकी 364 डेज तेरे को कुछ नहीं बांटना। सो यू हैव टू टीच, और ये बच्चे, ये घर से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। कई बच्चे ऐसा मानते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके रूल अपने लिए अलग है और हमारे लिए अलग है, और कई सारे प्रॉमिसेस हम बच्चों के साथ करते हैं जिनको हम पूरा नहीं करते। आई टेल यू अनदर स्टोरी। What happened? One mother and father with small child, they goes to other family. ऐसे शाम को socializing करने के लिए जाते हैं, और उस घर में उस बच्चे की उम्र का एक और बच्चा है। So both the kids were playing with each other. After 1 hour, they wanted to come back. So when they were going out to go back to their home, they called their child, Krishna, please come, we are going. So Krishna comes. Krishna is a 5-6-year-old child. और उसी की उम्र का बच्चा उधर भी है। Now Krishna is coming out with the car in hand. The other kid which belongs to the house, same house, is coming, running behind him and is crying, Mom, he's taking my car. Again, father और mom का status और ego hurt होता है, how my child could be ill mannered. तो बोलता बेटा ये आपकी कार नहीं है, ये तो आपके दोस्त की है, आप उसको दीजिए। नहीं पापा बहुत अच्छी कार लगी, मैं तो लेके जाऊंगा, उसके पास तो और भी है। और बेटा तुम्हारे पास भी तो काफी सारी कार है। बोलता पापा है लेकिन ब्लू कलर की नहीं है, दिस इज आई लाइक इट। तो बोलते पापा बोलते बेटा ब्लू कलर की ला देंगे। पापा बोलते ही रहते हो, लाते तो हो नहीं। हाउ मेनी टाइम्स वी मेक सच प्रॉमिसेस। बच्चे ने आइसक्रीम डिमांड की, बेटा दिलाएंगे। जैसे हमारे देश के नेता हमें आश्वासन देते हैं, ऐसे हम अपने बच्चों को आश्वासन देते हैं, और आपके बच्चों के दिमाग में भी आपकी जो छवि है वो नेताओं जैसी बन जाती है। So you have to mind, if you are not going to fulfill the promise of your child, you make sure that you do not make false promises. आप टेम्परेरी उसको चुप कराने के लिए आप गलत प्रॉमिस मत करिए, उसको समझाइए, या थोड़ी देर उसको रोने दीजिए, या उसको समझाइए नो आइसक्रीम विल गेट ओनली ऑन एवरी सैटरडे, whatever you do I can get you anything, I can get make a favorite dish of yours, but no ice cream, you please don't do that. And it, लेकिन एक और चीज है दोस्तों, अगर आपने बच्चों के लिए हर सैटरडे का रूल बनाया हुआ है ना, तो रूल आप पे भी एप्लीकेबल होता है। अगर वो आप किसी पार्टी में गए और उन्होंने आपको आइसक्रीम खाते हुए देख लिया या कोई ऐसी चीज करते हुए देख लिया। हम जब छोटे थे, नया नया टीवी घर में आया था और मूवी आया करती थी संडे को, तो पापा बैठ करके टीवी देख रहे हैं एक रूम में और हमें बोलते थे जाके पढ़ाई करो।
तो हम सोचते थे कि कैसे पापा हैं, खुद तो टीवी देख रहे हो, हमें पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, तो हमारा पढ़ाई में मन लगता था कि नहीं था. So if you want to practice a behavior, you have to follow that behavior on yourself. So you need. बच्चे बहुत छोटी छोटी चीजों को याद रखते हैं. कितनी बार आपने उनसे प्रॉमिस किया और कितनी बार आपने उस प्रॉमिस को तोड़ा. और जैसा मैंने कहा, अगर आप अपने बच्चे के दोस्त बनोगे, बच्चा आपकी हर बात मानेगा. एक और चीज मैं कहूंगा कि बच्चों पर कोई चीज को थोपिए मत, इम्पोज मत करिए, डेमोक्रेटिकली होने दीजिए. वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी ऑफ माई लाइफ विच आई रिलेटेड टू माई किड्स आई वुड लाइक टू शेयर ओवर हियर. मेरे दोनों बच्चे छोटे थे और कुछ जो यूजुअल प्रॉब्लम होती है ना, बच्चा खाते हुए टीवी देख रहा है, बच्चा बिस्तर पे बैठ के खाना खा रहा है, खाने को इनकम्प्लीट छोड़ रहा है, जो खाने की प्लेट है उसको बिस्तर पे छोड़ देता है, रूम से बाहर निकलते वक्त फैन और लाइट बंद नहीं करता. दीज आर वेरी स्मॉल इश्यूज. सो वी केप्ट टेलिंग, बट बच्चों को कोई असर नहीं होता. क्यों नहीं असर होता? क्योंकि उनके दिमाग में एक चीज स्टोर है दैट माय मॉम एंड डैड, दे आर टू क्रिएचर्स इन माय फैमिली, जो बोलते रहते हैं लेकिन उनको सुनने का नहीं ज्यादा. सो वन फाइन डे, as I told you, I'm very much connected with my both sons. और दुनिया में ऐसी कोई डिस्कशन, ऐसी कोई बात नहीं है जो मेरे बच्चे मेरे और मेरी वाइफ से ना कर सके. मी, माई वाइफ, माई बोथ किड, वी कैन टॉक एनी डैम थिंग ऑन दिस. अगर उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है ना, किसी भी तरह की हो, सबसे पहले हमसे शेयर करते हैं. सो यू हैव टू बी योर बडी. सो हम जब वो छोटे थे तो मैंने आई हैड एन आइडिया इन माई माइंड कि चलो ऐसा करते हैं. सो एक दिन मैंने देखा कि बच्चे बहुत अच्छे मूड में, मैं उनके साथ अक्सर संडे को क्रिकेट भी खेलता था. तो मैं ऑफिस से आया और खाने के बाद उनके रूम में आकर के बैठ गया. दे वर प्लेइंग. सो आई ऑल्सो गॉट इन्वॉल्व. आई स्टार्टेड प्लेइंग विद देम एंड देन आई स्टार्टेड शेयरिंग, आज मेरे ऑफिस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ. मुझे मालूम था कि मुझे उनके साथ क्या करना है. थोड़ी देर के बाद मैंने उनको बोला कि यार एक काम करते हैं, घर के लिए कुछ रूल्स बनाते हैं. देखो ना, घर में कुछ कंट्री के रूल्स होते हैं, सोसाइटी के रूल्स तो घर में होना चाहिए, और ये रूल्स सबके ऊपर एप्लीकेबल होंगे. ग्रैंडफादर पे भी होंगे, मदर पे भी होंगे, मुझ पे भी होंगे, मॉम पे भी होंगे. शुड वी डू दैट? यस डैड, वी शुड डू दैट. Okay, so I told my one son that you will be writing, and we all are, four of us were sitting. We will be contributing कि क्या rules होंगे. तो मैंने नहीं बोला. मेरा छोटा बेटा बोलता, पापा बिस्तर पे बैठ के नहीं खाना चाहिए. उनका वेरी गुड सजेशन, राइट इट डाउन. सो माई एल्डर सन वाज राइटिंग. अब एल्डर सन को लगा मुझे भी देना चाहिए. पापा रूम से जब भी बाहर निकले लाइट स्विच ऑफ करनी चाहिए. वेरी गुड. जो 8-10 रूल्स में चाहता था कि वो फॉलो करें, वो सारे के सारे रूल्स उन्होंने खुद बोले और खुद लिखे. मैंने कुछ नहीं बोला. जब लिख लिया उन्होंने ठीक से, तो मैंने बोला अब आप एक काम करिए, इस रूल को सबको बोलिए रीड करने के लिए. सो ही गोज टू his grandfather, grandmom and me, and we that these rules are to be implemented or followed by everyone. ठीक है, तो उनको लगा रूल सबके लिए हैं. और स्ट्रेटेजिकली वो जो रूल चार्ट था मैंने उन्हीं के रूम में स्टिक कर दिया स्ट्रेटेजिकली. तो उनको तो दिन रात उसको पढ़ना है. आफ्टर 15 days I was coming from out of station. It was 9 o'clock in the night, and I have a habit. Whenever I come home, the first thing I do is I go to the room of my kids and see what they are doing, and just to say them hi, hello, and spend 5 minutes with them. That how was your day and all. So when I entered the room, my elder child was not there. My younger child was there. उनके रूम में टीवी भी है. मैंने कभी उनके ऊपर restrictions नहीं लगाई. You should have TV in your room. You should have computer in your room. But you should know how to be disciplined. तो वो टीवी देख रहा था और बिस्तर पे बैठ के खा भी रहा था. तो 2 रूल का वायलेशन है. तो खाते हुए टीवी नहीं देखना था, वो देख रहा है. बिस्तर पर बैठ के नहीं खाना है, वो भी रूल है. मैं गुस्सा नहीं हुआ. मैंने उसको बोला हेलो पार्थ. सो ही वाज बिजी. जो डोरेमोन करके कोई आता था कार्टून, वो देख रहा था. तो ही वाज सो मच एनग्रोस्ड इन दैट कि ही डिड नॉट लिसन टू मी. 3 बार मैंने उसको बोला पार्थ. ही लुक्ड एट मी लाइक दिस, हेलो. तो उसने भी ऐसे कॉस्मेटिक स्माइल बना के बोला हेलो. उनका बोला पार्थ, वो जो हमने रूल शीट बनाया था वो लास्ट टाइम आपने कब रीड किया था? सिर्फ मैंने इतना बोला. इतनी देर में उसके चेहरे पर एम्बैरेसमेंट वाली स्माइल. वो चुपचाप उसने टीवी बंद किया, बिस्तर से उठा, जमीन पर बैठ करके खाने लगा. मेरा काम, मैंने उसको बोला थैंक यू, इतना बोल के मैं अपने रूम में आ गया. सो दिस इज हाउ आई इनकलकेटेड द डिसिप्लिन इन देम. अब देखिए, और 15 दिन निकले. मैं कहीं से फिर से बाहर आया. आज थका हुआ था एंड आई वाज वेरी टायर्ड. जनरली व्हेन आई कम बैक, I meet my kids and then I straight away go for dinner. But that day I was feeling tired and slightly feverish, so I goes to my room, I change and I start resting. So my wife comes कि डिनर कर लीजिए. मैंने कहा I don't feel like taking, मेरी तबीयत ठीक नहीं था. My wife forced me. तो उन्होंने मेरे रूम में ही मुझे एक प्लेट ला के दे दी खाने की कि आप खा लो 2 चपाती and then you can take medicine.
So I was sitting on in my room, bed in my room, and the moment I took the plate in my hand, मेरा छोटा वाला बेटा जो उस वक्त 6-7 साल का रहा होगा, he appears and he looks at me and what he says, पापा आप हमको तो बोलते हो कि बेड पे नहीं खाना चाहिए, आप तो खुद खा रहे हो. He was waiting for that incident, no? मेरे पास 3 ऑप्शन थे दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि हाउ टू डील विद योर किड्स. मेरे पास 3 ऑप्शन थे. ऑप्शन नंबर 1, मैं उसको गुस्से में बोलता, डोंट ट्राई टू टीच मी द डिसिप्लिन, गो बैक, गो इन योर रूम एंड स्टडी. तो उसके दिमाग में क्या आता, भैया ये रूल जो है ना, हम छोटे लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए कोई रूल नहीं होता. तो उसके दिमाग में कभी वो अपने दिल से रूल को फॉलो नहीं करता. अगर मैं उससे बोलता, बेटा यू आर राइट बट आई एम नॉट वेल टुडे, सो दैट्स व्हाई लेट मी ईट हियर, तो वो सोचता कि अच्छा हर रूल का कोई ना कोई ब्रेक होता है, हर रूल का कोई ना कोई डेविएशन होता है. इट मींस आई डोंट फील ओके, आई कैन eat on my bed. But what I did is I took 30-40 seconds to decide. I was not feeling well. I stood up, I came out in the dining hall and I started eating there. And I told, I thanked my son. Thank you so much, Parth, for reminding me. उस दिन उसका बिलीफ उस जगह पर इतना बढ़ गया जिसकी कोई उम्मीद नहीं है. सो यू डेमोक्रेटिक पैटर्न पे आपको वो सब चीजें करनी पड़ेगी, अदरवाइज बच्चे को ये बता दिया. बच्चा सबसे ज्यादा अगर आपका नफरत करता है तो कंपैरिजन से करता है. कभी अपने बच्चे का कंपैरिजन मत करिए दूसरे बच्चों के साथ, कभी अपने बच्चों का कंपैरिजन मत करिए कि लुक एट दैट, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है. जिस दिन आपके बच्चे ने कंपेयर करना लगे, बोलो पापा मेरे दोस्त के पापा तो बड़े हैंडसम है, आप तो अच्छे नहीं लगते, आपका तो पेट निकला हुआ है, आपको कैसा लगेगा. कभी उसने कंपेयर कर दिया कि पापा मेरे दोस्त के पापा के पास तो बड़ी कार है, आपके पास तो छोटी सी कार है, आपको कैसा लगेगा. एक बच्चा जो सबसे ज्यादा नफरत करता है वो कंपैरिजन करता है. आपका बच्चा एकदम यूनिक है, उसको दूसरों से इंस्पिरेशन लेने दीजिए स्टोरीज के माध्यम से, लेकिन कंपैरिजन करते हैं तो आप अपने बच्चे को इतना नेगेटिव बना देते हैं कि उसको पॉजिटिव करना बहुत मुश्किल हो जाता है. बच्चों को घर के छोटे छोटे कामों में आप इन्वॉल्व करिए और उनको घर के साथ अटैच रखिए. उनको थोड़ी थोड़ी तकलीफें भी आने दीजिए, उसको एकदम सॉफ्ट टॉय जैसा मत मेंटेन करिए, वरना बच्चा इतना डिपेंडेंट हो जाएगा आपको कि जिस दिन वो अकेला पढ़ने बाहर जाएगा हर छोटी चीज के लिए आपको फोन करेगा. डोंट ट्राई टू मेक योर चाइल्ड इज ममाज बॉय. उनको इन्वॉल्व करिए. संडे को बोलिए कि भाई संडे को मिलकर के ये काम करेंगे. मैं बच्चों को अपने साथ कार वॉश करा रहे हैं, बच्चों को ये करना है, छोटी छोटी चीजों में गार्डनिंग कर रहे हैं, चलो भाई आज ये काम करते हैं, तुम पानी दो, वाटरिंग करोगे. सो यू हैव टू हेल्प इन्वॉल्व देम स्मॉल स्मॉल वर्क. मैं ये नहीं कह रहा कि केवल प्यार रखिए, बट यू हैव टू बी फर्मली अफेक्शनेट. जहां जरूरत हो वहां आप उसको स्ट्रिक्ट भी होंगे, जहां पर जरूरत हो वहां पे प्यार भी दिखाएंगे. जरूरत से ज्यादा पैम्परिंग बच्चे को इनडिसिप्लिन बनाएगी, जरूरत से ज्यादा स्ट्रिक्टनेस बच्चे को आपसे डिस्कनेक्ट कर देगी. तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए. इफ माई चाइल्ड इज माई बेस्ट फ्रेंड टुडे, बट इफ ही डज रॉन्ग ही इज स्केर्ड ऑफ मी एज वेल. इवन उसको कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है तो वो करेगा, पापा मुझे जाना है, मैं जाऊं क्या. मैं उससे 2-3 सवाल पूछता हूँ कि ओके बेटा, take care of this, who's going with you, okay, what time you'll go, what time you'll come, okay, how you're going, that's it, take care of it and keep calling us, that's it. I never say no if I'm satisfied, and if they are wrong they are going to get scolded, they know it very well, and they don't take it personally because they know what are my limits and what are my boundaries. So my dear friends, बच्चों की तारीफ जरूर करिए और अक्सर करिए, उसी से आप उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं. बुराई और स्कोल्डिंग तो हम कंटिन्यूस करते हैं, लेकिन बच्चे तारीफ के लिए तरस जाते हैं. ये मत सोचिए कि आप उनको प्रेज करेंगे तो वो बच्चा बिगड़ जाएगा. नो, प्रेज से बड़ा कोई इंसेंटिव है जो बच्चों को आप नहीं कर सकते. बच्चा अगर कोई गलती भी करता है तो उसको प्यार से समझाइए, चिल्लाइए मत. स्कोल्डिंग का मतलब चिल्लाना या ऊंची आवाज नहीं होता. आप खुश नहीं हैं वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन से भी दिखा सकते हैं, और उसको समझाइए कि व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट. इफ यू आर एबल टू डू दैट, ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू हेल्प योर चाइल्ड. लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो मैं कहूंगा कि बच्चा सबसे ज्यादा हमारे व्यवहार से सीखता है. आज बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है दोस्तों कि हम ऑनलाइन क्लासेस में बच्चा बाहर नहीं जा पा रहा, बट ठीक है, बहुत जल्दी वो टाइम भी आएगा जब बच्चा बाहर जाएगा और सिचुएशन होगी. लेकिन आपको जब बच्चा घर में है तो आपका रोल डबल हो जाता है. एक टीचर है जिसका नाम टीचर है, वो तो
डिस्टेंस पे हैं, बट आपको एज अ मॉम, एज अ फादर, सेकंड टीचर के तौर पर काम करना पड़ेगा कि बच्चा सही तरीके से पढ़े, बच्चे को इंटरेस्ट आप लाएं, बच्चे को कुछ इंसेंटिवाइज करें कि हाँ बेटा तुम 3 घंटे अपनी क्लास अटेंड करोगे तो विल डू दिस फॉर यू। बच्चे को थोड़ा थोड़ा एंटरटेन करें, क्योंकि बच्चे के लिए 3 घंटे तक स्क्रीन में बैठना, बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, दोस्तों से नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको दोस्त वाला रोल अदा करना पड़ेगा। बच्चे के साथ छत पर जाकर के खेलिए, बच्चे को इन्वॉल्व करिए, बच्चे के साथ कुछ मोबाइल पे कुछ गेम खेलिए, उसको ऐसा लगना चाहिए माई मॉम इज माई बेस्ट फ्रेंड, माई डैड इज माई बेस्ट फ्रेंड। एंड जब आप कर पाएंगे तो द चाइल्ड इज गोइंग टू टेक वेरी गुड इंटरेस्ट इन ऑनलाइन। सो देखिए उसको उसके हाल पर मत छोड़िए कि वो कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, क्लास में ठीक से बैठा है कि नहीं बैठा, रेस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं दोस्तों। मैं बहुत सारे वीडियोस मेरे रिलीज होते रहते हैं, और मैं इस बारे में कुछ अगर आपके क्वेश्चन है तो हम पूछ सकते हैं, टाइम की हमेशा लिमिटेशंस रहती है। मेरा यूट्यूब चैनल भी है प्रीतम गोस्वामी के नाम से, आप उसको जाकर के बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं मोटिवेशन के। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं ब्रीफ में आपके साथ शेयर करना चाहता था। थैंक यू इमैनुअल फैमिली फॉर इनवाइटिंग मी and to allowing me to have an interaction with all the parents present here. Over to Deepika ma'am. Thank you so much, sir. It was really wonderful episode. Now I request parents, आप में से किसी के भी कोई डाउट्स हैं आप सर से प्लीज पूछ सकते हैं। पेरेंट्स, If you have any questions, please feel free to ask your questions. आप क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके, या आप चाहें तो चैट बॉक्स में जा करके भी लिख सकते हैं। I think nobody wants to ask a question, so we can move ahead. yeah sir. Hello, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yeah, Nitesh. Hi, sir. How are you? I'm fine. My question is कि जो मेरी younger daughter है, completely different from my elder one. She is shy. She is introvert. But my elder one is not like her. So उसमें ये सब कहाँ से आया? मतलब हाँ, मैं बताता हूँ। How old your हमारे घर का जो रहा होगा, तो मेरा एल्डर वाला बच्चा वैसा ही है, पर मेरा छोटा वाला बच्चा तो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। ऐसा मैं आपको बताऊं, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। How old your younger daughter is? She is in first right now. She is 6 years. Okay. Let me tell you a couple of things. You go to any family, you will not find two kids similar to each other. Right. Okay. Right. In my case, also my elder one is shy and younger one is more confident. So it depends. Right. कई बार इतनी छोटी, देखिए हमारे एनवायरनमेंट में there are some good things, there are some bad things, there are some positive things, there are some negative things in every family environment. So you are not aware which child picks up what, getting my point? So that is important. तुम्हें समझना पड़ेगा, बहुत बारीकी से उसको देखना पड़ेगा कि in which situation she is shy, whether she is shy to you only or she is shy to outsiders. You need to understand there must be some insecurity. और कई बार क्या होता है, कोई बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। जैसे मेरी एक स्टूडेंट है, उसकी डॉटर है, शी इज इन कोलकाता, उसकी यंगर डॉटर बहुत शाई है। तो शाई कैसे हुई कि पीछे कुछ ऐसे सेक्सुअल अब्यूज के केसेस हुए और मीडिया पर बहुत आए, तो माँ अपनी बड़ी डॉटर को समझाया करती थी, बेटा कोई अंकल आए तो उनसे अजनबी से बात नहीं करना, ये नहीं करना। तो कई बार हम स्लोली एंड ग्रेजुअली ऐसी चीजों को प्लांट कर देते हैं। आई एम नॉट सेइंग सेम सिमिलर थिंग माइट हैव हैपेंड। सिमिलरली कई बार क्या होता है कि बड़ा बच्चा थोड़ा सा ज्यादा टॉकेटिव होता है, ज्यादा कमांडिंग होता है, आपको पता नहीं होता, कई बार वो छोटे बच्चे को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कमांड करने की। दिस हैपेंड इन माय फैमिली व्हिच आई गॉट टू नो स्लाइटली लेटर, दैट my elder was more commanding and my younger one was मतलब, तो वो ऐसी सिचुएशन थी। तो कई बार क्या होता है कि 10 चीजें आपके एनवायरनमेंट में, जिसमें से 6 पॉजिटिव हैं, 4 नेगेटिव हैं, तो आपको नहीं पता कि पहले वाले ने हो सकता है। और पहले वाले के केस में क्या होता है कि फर्स्ट चाइल्ड इज ऑलवेज मोर पैम्पर्ड, फर्स्ट चाइल्ड गेट्स मोर फोकस फ्रॉम द फैमिली, फ्रॉम द पेरेंट्स, उसके लिए हर चीज होती है। सेकंड चाइल्ड के वक्त ना पेरेंट्स में उतना एक्साइटमेंट होता है, ना फैमिली में उतना एक्साइटमेंट होता है, ना उसको, और फोकस 50-50% डिवाइड होता है। फर्स्ट चाइल्ड के केस में कंप्लीट फोकस गोज टू द फर्स्ट चाइल्ड,
But second child के case में that focus is divided, you know. So there are n number of reasons, but you have to closely observe. ठीक है, कुछ बच्चे shy होते हैं. I was also shy, but later on they can become. That shyness should not create bad feelings in that person's mind. तो shyness होना कोई बुरी बात भी नहीं है. थोड़ी टाइम के बाद तो आप उस shyness को भूल जाइए. उसको confidence. But her house is so aggressive as she is. The younger one or elder one? Sometimes she gets the younger one. Okay, shy भी है और aggressive भी है. हाँ, मतलब at some times she is aggressive. That जो means हमारे घर में से किसी में भी नहीं है. Not in her grandparents, not in her father, not me, and not even in her elder sister. Okay. Nobody. But still she is aggressive. Okay. Sometimes this aggression also comes from friends. This aggression also comes from the kind of program we watch on TV. This aggression may come from outsiders. Okay. So I have seen a cases where my friend was very aggressive at the age when I was 3 or 4, and when I saw him getting aggressive, I also become aggressive. या वो बच्चा एक बार एग्रेसिव हुआ और उसको लगा कि मैं जब गुस्सा होती हूँ, एग्रेसिव होती हूँ, तो मेरी इच्छा पूरी होती है, तो बच्चा उसको एज अ टूल भी यूज करता है. ठीक है. तीसरी चीज, बट यहाँ पर मुझे एक कनेक्शन नजर आ रहा है कि बच्चा शाई भी है और एग्रेसिव भी है. उसकी पॉसिबिलिटी कब होती है कि देयर आर मेनी थिंग्स इन द माइंड ऑफ द चाइल्ड, बट चाइल्ड बीइंग शाई और इंट्रोवर्ट चाइल्ड इज नॉट एबल टू शेयर व्हाट्स गोइंग इन दैट चाइल्ड्स माइंड. तो वो अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करता है, और जब आप अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हो तो पीरियडिकली अंदर से वो कभी ना कभी वो एग्रेशन के तौर पर निकलती है. तो व्हाट नीड्स टू बी डन, दैट you cannot expect change overnight, but you keep it in mind, but stop telling in the front of your child कि your child is aggressive, your child is shy. अगर बच्चे के सामने कई बार अपन डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोलते हैं, बच्चा सो भी रहा है तो भी बोलते हैं, तो उस बच्चे का बिलीफ क्रिएट करते हैं. तो फैमिली में कोई भी ऐसा ना बोले, एंड स्टॉप कंपेयरिंग बोथ द चाइल्ड. अगर सचिन तेंदुलकर के भी 2 ब्रदर थे, उनके बच्चे बोलते कि यार ये दोनों एक ही पैदा हुआ, ये क्रिकेटर बन गया, 2 नहीं बन पाए क्रिकेट, तो वो भी खेलते थे. एवरी चाइल्ड इज अ यूनिक चाइल्ड. उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग अलग होती है. तो कंपैरिजन डायरेक्टली इनडायरेक्टली मत करिए, और आगे स्लोली एंड ग्रेजुअली आप इसको एड्रेस करिए कुछ कहानियों से, कुछ स्टोरीज से, एंड ट्राई टू बी द गुड फ्रेंड. शी इज कंफर्टेबल विद यू, तो उसको इतना करिए, अगले 2-3 महीने में सिचुएशन पे ले आइए कि उसको कोई चीज बॉदर कर रही है, शी इज नॉट एबल टू शेयर बिकॉज ऑफ शाइनेस, शी शेयर्स विद यू. एंड नेक्स्ट 3-4 मंथ्स पर्पसफुली अगर आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, यू विल एबल टू नो दैट व्हाट एग्जैक्टली मेड हर शाई. I do observe her, मतलब मैं उसको ऑब्जर्व भी करती हूँ, और इनफैक्ट उसके साथ में हम लोग बात भी करते हैं. सैटरडेज हम लोगों का ऐसा होता है कि हम बच्चों के साथ में रात को मस्ती वगैरह सब करें, तब भी वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहती. Something you need to identify. मैं तो एक कहता हूँ, जब कई पेरेंट्स के साथ मैं बात करता हूँ और कुछ चैलेंजेस है, मैं तो इतना कह सकता हूँ कि आप अपनी डॉटर को अगर मेरे घर छोड़ दोगे ना, और 1 महीना वो मेरे घर रहेगी, तो I can make her an extrovert child, and she will not get aggressive on once only. I can guarantee you that. Then I'll send it to you. Yes. So you need to identify the root causes. कुछ ना कुछ चीजें हैं जो उसके, और अभी तक कर सकते हो. जब तक बच्चा 8 साल से बड़ा नहीं होता, तब तक you have all good chances to address. तो उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, you'll get to know. When sometime I come to your home, then I'll try talking to that. एक बार आपकी डॉटर से मैं बात करूंगा, तो समझने की कोशिश करूंगा कि what are the challenges. Fine. Soon we'll meet. Okay. Thank you so much. Thank you. Somebody else? Hello, sir. Good evening. हाँ जी, good evening. Sir, how are you? I'm fine, ma'am. Sir, it was a nice session. So I want to ask a question. I'm having a 3.5 years old baby. He's Okay. son, right? He does not make a eye contact with anyone. And whenever we used to call him by his name, Durvang, Devu, Durvang, he does not listen to anyone. Even in his online classes, when his teacher recalls his name, Durvang, he does not make eye contact, and he don't bother to listen anyone. So what can I do for that? What's the age? We are still preparing. I'm having my mother-in-law. She is also trying well. He only listens to his grandfather. Rest of all, he does not.
and even he don't make eye contact. What can I do for that? इसको यहाँ रुका के पूछ सकते हो, आवाज जा रही है। एक मिनट। ओके, देखिए मैम, आपने कितना, उसकी एज क्या बताई मैम? Sir, he is 3.5 years old. 3.5, ओके, नो प्रॉब्लम। अभी बच्चा बहुत छोटा है। इसमें एक बार बताइए कि बच्चा आउटडोर कितना खेलता है, मतलब आउटडोर गेम? In evening, he used to be outside from 6:30 till 8 o'clock. ओके, घर के कितने लोग हैं जो उसके साथ इन्वॉल्व होते हैं खेलने में? Grandmother, even me, even my Okay. husband. हाँ, अब इसमें खेलने का मतलब ये है कि सपोज आप उसके साथ क्रिकेट या फुटबॉल खेल रहे हैं या गेम खेल रहे हैं, तो मीन्स यू हैव टू बी द पार्टी टू इट। फॉर एग्जाम्पल, if I am playing cricket with my 4-year-old child, I will not play as a father. I will play as if I am an equal age friend, number one. And I let my child win without letting him know that I am favoring him. मैं बच्चे के साथ बच्चा बनकर के खेलता हूं और उस बच्चे को जीतने देता हूं, ये बताए बिना कि मैं उसको जीतने दे रहा हूं। ठीक है, इस तरह कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस का इशू है। और मैं एक और चीज बता देता हूं कि ये बच्चों की जो माइंड सेट है ना, ये कई बार एक इंसिडेंट से भी बन जाता है। 1.5 साल से बच्चा थोड़ा सा एक्सप्रेस करना शुरू होता है और आज बच्चा 3.5 साल का है। हो सकता है इन 2 साल में उस बच्चे के साथ कोई सा इंसिडेंट हुआ, वो इंसिडेंट 2 मिनट का भी हो सकता है, वो 3 मिनट का भी हो सकता है, वो घर में भी हो सकता है, घर के बाहर का भी हो सकता है। एंड दैट हैज एक्चुअली बॉदर्ड चाइल्ड अ लॉट। और इसलिए मैं कहता हूं कि चाइल्ड के साथ कनेक्ट रहिए, बट अभी बहुत जल्दी जज मत करिए। कुछ बच्चे धीरे धीरे टाइम लेते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, बच्चा जब स्कूल पढ़ने जाता है तो कुछ बच्चे कलर्स को बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अल्फाबेट्स लिखना शुरू करते हैं। कुछ बच्चे थोड़ा देर एज में करते हैं। जो देर एज में कर रहे हैं उसका मतलब नहीं कि वो स्लो है, शुरू में अपब्रिंगिंग का पैटर्न होता है। बट अभी 3.5 इज टू अर्ली। आप 5 साल तक इसको वेट करिए, कहीं कोई इशू नहीं है। स्पेसिफिकली जैसे आप अपनी उनकी टीचर को बता दीजिए, टीचर इनडायरेक्टली विल ट्राई टू हैंडल। और ऐसे बच्चों को सबसे अच्छा हैंडल करने का तरीका है, उनको कभी एहसास मत कराइए कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद देम। उनको कभी ये मत बोलिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी। और सबसे अच्छा तरीका उनके साथ फ्रेंड बनने का, डोंट ट्राई टू बी पेरेंट्स विद देम, बिकम फ्रेंड, प्ले विद देम एज अ चाइल्ड, एज इफ यू आर अ चाइल्ड, टॉक टू देम कीपिंग देयर लेवल इन माइंड। 3.5 साल के बच्चे का जो लेवल होता है उस लेवल की उसके साथ बात करिए, एडल्ट्स की तरह बात मत करिए, तो शायद आप उसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। बट एवरी चेंज टेक्स 3-4 months टू हैपन, बट वेट टिल 5 years। आई वुड से 5 साल में भी अगर आपको लगता है ये चीजें परसिस्ट कर रही है, देन यू विल कम बैक टू मी, आई विल सजेस्ट यू अ सॉल्यूशन। आई विल हैव टू टॉक टू द चाइल्ड। एक्चुअली मैं अगर 10 मिनट बच्चे से बात करूंगा तो आई विल बी एबल टू टेल यू कि हाउ टू हैंडल द चाइल्ड। Okay, sir, fine. Sir, in reading and writing, he is okay. पढ़ने के समय वो बिल्कुल एक्टिव है। अगर मैं उसको पढ़ा रही हूँ, writing is doing well, oral भी याद करा रही हूँ, is doing well. But जब आई कांटेक्ट की बात आती है या अगर वो कुछ खेल रहा है, कुछ, he does not respond to that. This is the thing only I am facing a little bit problem. Me and my mother-in-law both. Eye contact is directly related to the confidence of the child. As I told you, there must have been an incident prior to this. That's why the child has started acting like this. So you have to build the confidence. Eye contact is directly related to the confidence the child has. तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बच्चे को इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाइए, बच्चे को 2-3 बार प्रेज करिए, और ये चला करके नहीं करिए, बच्चे के साथ इन्वॉल्व होइए, उसके साथ खेलिए बच्चा बन करके। ये 2-3 चीजें करिए, उसको प्रेज करिए, उसको एनकरेज करिए। वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा किसी चीज में तो भी उसको एनकरेज करिए और एकदम उसका बडी बनिए। डू इट फॉर 3-4 months, आई बिलीव यू विल बी एबल टू एनहांस द कॉन्फिडेंस। और फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है, लेट चाइल्ड grow, get him grow to age of 5 and then come back to me. I'll certainly help you. But ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, just take it easy. वो अपने आप थोड़ा सा 1-2 साल में हो जाएगा ठीक। और टीचर्स को आप जरूर बताइए so that वो स्पेशली कुछ ऐसे टैक्स यूज करेंगे क्लासरूम में to enhance the confidence of the child. Okay, sir. Okay, sir. Thank you so much, sir, for your valuable suggestions. Thank you so much. Thank you.
Thank you, ma'am. Is somebody else? Hello, ma'am. Hello, ma'am. Hello. Yes, Yeah, ma'am. ma'am. You're audible. Yes. 6 साल की लड़की है लक्षिका। वो जैसे मोबाइल पे क्लास आती है ना, तो उस पे मतलब ध्यान नहीं दे पाती और ध्यान देती नहीं है। और हम पढ़ाते हैं ना तब भी कुछ समझ पाती है, ऐसे यूं नहीं समझ पाती मोबाइल पे। और जैसे गेम वगैरह तो खूब देखती है, उनको तो सब समझती है। और जैसे क्लास आती है तो उस पे ध्यान नहीं देती है, वो कुछ समझ नहीं पाती है। इंटरेस्ट नहीं है उसका। कितने साल की है मैम? वो 6 साल की है, अप्रैल में 6 साल की हो गई। और कौन से क्लास में पढ़ती है? वो फर्स्ट में। फर्स्ट में ना। तो दो बातें करिए। बच्चे का कई बार जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं होता वो बच्चा उस चीज को, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं था तो मैं कभी भी उसमें कंसंट्रेट नहीं करूंगा। तो क्लियर है कि उसका कंपैरेटिवली ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्ट कंपैरेटिवली कम है। तो आप उनके जो टीचर हैं उनको बताइए, और जब आप उनके टीचर को बताते हैं तो टीचर विल टेक स्पेशल केयर टू एंगेज। ऐसे बच्चों को एंगेज करने के लिए वो करेंगे। क्या करते हैं कि हम भी जब ट्रेनिंग करते हैं और देखते हैं कि कुछ लोग ये फोकस नहीं कर रहे, तो हमको पता है इनको कैसे फोकस करना है। तो उनसे कुछ सवाल पूछ करके, उनका नाम बार बार ले करके, उनकी तारीफ करके, बहुत सारे टूल्स होते हैं। तो आपने अच्छी बात कही कि वो बाकी जगह तो कर रही है लेकिन यहाँ पर नहीं कर रही है। तो आप उनकी कंसर्न टीचर को जरूर बताइए और डेफिनेटली टीचर्स इस बात का ख्याल रखेंगे। छोटी चीज है, मैं कह रहा हूँ कि उसका एक रीजन भी है मैम कि अभी बच्चा घर में बैठ करके ना स्कूल नहीं जा पा रही ना। जब स्कूल जाती थी तो उसको यही अच्छा तो बोल लगता रहा हूँ था। आपको। मैं यही तो बोल रहा हूँ आपको। आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। इसके पहले मैं यही बोल रहा था कि ये चैलेंज आप ही के साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ आ रहा है, क्योंकि बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है। हर बच्चा स्क्रीन फ्रेंडली नहीं हो सकता। हर बच्चों को जैसे आप समझा रहे हो तो बच्चा समझ रहा है, तो अब क्या उसको उसके दोस्त नहीं मिल रहे, उसको सोशलाइजिंग नहीं हो पा रहा, उसको खेल कूदने में उतना मजा नहीं आ रहा। तो ये जो शॉर्ट टर्म है, डेफिनेटली जब स्कूल जाएगा तो बच्चा वापस आएगा। लेकिन फिर भी आप टीचर को जरूर बताइए और वो उनकी जो क्लास टीचर को बताइए, और क्लास टीचर 100% इस तरह से करेंगे कि वो बच्चे को एंगेज करेंगे। अगर पेरेंट्स ने बता दिया कि ये मेरा बच्चा उतना फोकस नहीं कर पा रहा, तो टीचर चाहे तो वो फोकस करवा सकता है। बाकी इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, क्योंकि आज मैं भी बताऊं आपको कि हम भी 1.5 साल से बहुत सारी मीटिंग्स ऑनलाइन कर रहे हैं। तो कभी कभी तो हम भी खुद इतना पक जाते हैं कि हम मीटिंग को चालू करके छोड़ देते हैं, हमारा खुद ही दिमाग में काम नहीं करता। तो बच्चा तो हमसे ज्यादा एनर्जेटिक है ना। तो कोई ऐसी खास बात नहीं है, आप टीचर को बता देंगे। बाकी जब बच्चा स्कूल जाएगा तो कोई जस्ट एंजॉय। थैंक यू सर। Thank you, sir. I suppose, thank you so much, sir, for your precious time, and I thank to parents also for giving us your precious time. Ma'am, principal. Ma'am, principal. Hello, Over to you, ma'am. am I audible to you? Yeah, ma'am, you're audible. Yes, Yeah. Good evening, Preetham sir. Good evening, Deepika, and evening, everybody else in the meeting. Preetham sir, it is always wonderful. It is always nice to hear motivational words from you. And today, I believe our parents also, they have learned a lot. They have learned a lot golden rules of parenting. Sometimes while becoming parent, we become too strict, we become too disciplined oriented. But today you have shared a lot of parenting rules with us, and I hope all the parents have enjoyed the session. I thank parents also that they took out time on this Sunday evening, and just keep guiding us, keep motivating us. Thank you, sir. Thanks a lot. Okay, so let us conclude the meeting, Deepika. Yes, sir. Yes. Thank you. Thanks a